Yes, come on topic. So in the last class we have discussed about the general properties of halogens, and in that we have seen how the halogen reacts with hydrogen, oxygen, metals. One more topic is given, or one more part is given in the reaction, that is a reaction with halogen to halogen element. So in this, these compound are the compound which are formed by the reaction of halogen and halogen are called as interhalogen compounds. But about the detail, how these are prepared, what is the properties, how these react with the water and other compounds, and a structure which are very important, I will discuss later on, because of this part is included in our syllabus in detail in the next part of this group or chapter. So leave here formation of interhalogen compounds. About detail we will discuss later on, because of it is given in our syllabus in the next part. So now come on the next topic. That one is the anomalous behavior of fluorine. Anomalous behavior of fluorine. So like the first element of P block, the fluorine also exhibit anomalous behavior, and this anomalous behavior is due to first very small size, second due to very high electronegativity, next absence of vacant d orbital, and high ionization enthalpy. Okay, so these are the regions. These regions are in case of first element of all the group present in the P block. This is also happen in the S block also, because if you have studied in the 11th standard, lithium and beryllium also shows anomalous behavior, and that one is the first element of S block element. However, come on your topic. So these are the reason, that's why fluorine also shows anomalous behavior. But what are the anomalous behavior which are shown by the fluorines are? First, क्या क्या होंगे बेटा इसके anomalous behavior? First है बेटा कि fluorine has low melting and boiling point than expected due to very small size. चूंकि फ्लोरीन का वेरी स्मॉल साइज होता है, इसके कारण से क्या होता है बेटा कि फ्लोरीन हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड. सबसे लो तो होगा ही, बट ये इतना लो होता है जो होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है, ठीक ना. इसीलिए बोलते हैं लोअर देन एक्सपेक्टेड, और इसका रीजन एक ही है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. जब वेरी स्मॉल साइज होगा, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया होगा, वंडर वाल्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएंगे. क्लियर. सेकेंड है बेटा लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एफएफ बॉन्ड. ये भी पढ़े हो. ये क्यों होगा? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम्स. और इसमें पढ़े हो कि फ्लोरीन का जो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, that one is less than chlorine as well as bromine. Okay. थर्ड है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy of fluorine is less than chlorine. This is also due to small size of fluorine which causes the inter-electronic repulsion. Once again, electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine due to smaller size of fluorine which causes the inter-electronic repulsion.
ओके, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ में देखो, फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. Fluorine cannot show positive oxidation state, but others can show, and this is due to highest electronegativity of fluorine. सबका रीजन पहले मैंने बताया, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको दोहरा दे रहे हैं, रिवाइज कर हो जा रहा है आपका. Fluorine cannot show positive oxidation state, and this is one and only due to very high electronegativity, but the other element can show positive oxidation state also. नेक्स्ट फिफ्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. HF इज लिक्विड, यानी फ्लोराइड ऑफ हाइड्रोजन इज, अरे सॉरी, फ्लोराइड हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन इज लिक्विड, व्हाइल HCl इज गैस. जबकि Cl का साइज बड़ा है, Cl को कंपैरेटिवली लिक्विड होना चाहिए, या उससे अधिक इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था. तो क्या होगा बेटा, HF is liquid, that is hydride of fluorine is liquid, or you can say HF is liquid while HCl is gas. Reason, due to high electronegativity, fluorine forms hydrogen bond, and in HCl fluorine hydrogen bond is absent. That's why it is liquid. Next beta, melting and boiling point of HF is highest than all other halide due to again हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही बेटा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ऑल ऑफ द हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप, एंड द रीजन बिहाइंड इट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? तो दीज आर द सम. इसके अलावा भी बात करें अगर जनरल में, तो फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, दैट इज HOF, hypofluorous acid, but the other element form a large number of oxy acid like HOX, HO, यहां पर XO, HOXO2 and HOXO3. Detail I will discuss later on about the oxy acid in the part of oxy acid. So fluorine can form only one oxy acid, but the other element forms large number of oxy acid, that is 4 oxy acid. About detail I will discuss later on in this chapter in the part of oxy acid of halogen. Okay, but you should know fluorine can form only one oxy acid, that is hypofluorous acid, but the other element form large number of oxy acids. So these are the some anomalous behavior of fluorine, and this is due to the small size, high electronegativity, absence of vacant d orbital, and high ionization enthalpy. Okay, so these are the anomalous behavior of fluorine. Now the study of some element and compound of this chapter, or this group you can say, and first is your chlorine, Cl2 या डाइक्लोराइड. दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है? क्लोरीन, क्लोरीन की डिस्कवरी बेटा पहले ही आपको बताया गया था, तो कि दिस वन वाज डिस्कवर्ड बाय सीले and Priestley, their co-worker, and the name chlorine was given by Davy because of when chlorine burns, it gives a greenish yellow flame, and because of chlorus means greenish yellow, that's why it is named as chlorine. That is the element which burns with greenish yellow flame. About the preparation, for the preparation, तो
क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन आप 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हो, बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड HCl. When manganese dioxide reacts with HCl, it gives MnCl2, Cl2, ये क्लोरीन आपको मिल गया, and plus 2H2O. This is the laboratory process of preparation of chlorine. ये बेटा क्लोरीन बनाने की लेबोरेटरी प्रोसेस होता है, and this can be also prepared by using NaCl, that is sodium chloride or common salt, NaCl plus manganese dioxide plus H2SO4, 4H2SO4, then this will give you 4NaHSO4 plus Cl2 plus MnCl2 plus 2H2O. यहाँ पर भी बेटा क्लोरीन ऑब्टेन्ड होता है. Other process of preparation of chlorine is when HCl reacts with potassium permanganate KMnO4 plus 16 HCl. This will also give you potassium chloride, manganese dichloride plus क्लोरीन, ये आपको ऑब्टेन्ड होगा, एंड प्लस 8H2O. ये भी बेटा ये जनरल प्रोसेस है, बट मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl जो है ये लेबोरेटरी प्रोसेस कहलाता है क्लोरीन के प्रिपरेशन का. और अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें बेटा, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में इंडस्ट्रियली क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय डीकन प्रोसेस. डीकन साइंटिस्ट का नाम है. डीकन प्रोसेस इसमें करते क्या है बेटा कि व्हेन HCl is oxidized by air or oxygen in the presence of cupric chloride catalyst at 723 Kelvin temperature, it gives chlorine. This is the industrial preparation of chlorine. So industrially chlorine is prepared by Deacon process. What is the Deacon process? When HCl gas is oxidized by air or oxygen, you can say, in the presence of cupric chloride catalyst at 723 Kelvin temperature, we get chlorine gas. Other process, तो अदर में याद होगा बेटा कि जब आप 11th में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े होगे, तो उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन की 3 प्रोसेस होती हैं, और तीनों ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड या ब्राइन सोल्यूशन से होती हैं, जिसमें नेल्सन सेल प्रोसेस होता है, कास्टनर कैल्नर सेल प्रोसेस होता है, और साल्वे कैल्नर सेल प्रोसेस होता है. बट इन योर सिलेबस इन 11th only Kastner Kellner cell process is given, and in that case you can see there कि by the electrolysis of sodium chloride we get sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. Sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. So chlorine is also obtained when we electrolyzed sodium chloride. आप अगर मोल्टेन NaCl को करोगे, मोल्टेन NaCl, इसको मोल्टेन कर दो, लेकिन ब्राइन नहीं होगा, ये मोल्टेन को करोगे तो ये क्या दे देगा 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस, नीचे दिख रहा है बेटा. देन एनोड पर क्या जाएगा 2Cl माइनस, और एनोड पर ये Cl2 गैस के रूप में निकल जाएगा. कैथोड पर सोडियम आएगा, कैथोड पर आपका 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम विल ऑब्टेन्ड. तो अगर मोल्टेन NaCl का करोगे बेटा, सोडियम और क्लोरीन ऑब्टेन्ड होता है. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, जहां पर फैक्टर की बात किया होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिसिस या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट आया है, वहां पे आता है. फिलहाल उससे मेरा मतलब नहीं है. मोल्टेन NaCl को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे बेटा, यू विल गेट क्लोरीन एट एनोड, and this is also the
preparation of chlorine, and this is the industrial preparation because of sodium chloride is obtained very easily from the seawater, and this is very cheapest material, and this is mainly used for the preparation of chlorine. Okay. Other, if you electrolyzed the aqueous NaCl, तो aqueous NaCl में जब aqueous NaCl होगा बेटा तो क्या होगा, 2NaCl ये आयोनाइज होगा 2Na प्लस 2Cl माइनस, देन ये वाटर भी इसमें प्रेजेंट होगा बेटा, तो 2H2O ये भी आयोनाइज होगा। सर दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिख रहा है यहाँ तक, 2NaCl है। यस सर। 2NaCl ये जब ब्राइन सोल्यूशन यूज करोगे बेटा तो दिस विल गिव्स यू 2Na प्लस 2Cl माइनस, और चूंकि एक्वस मीडियम है बेटा तो वाटर भी इसमें दे देगा 2H प्लस एंड 2OH माइनस, नीचे का मिटा दे रहे हैं बेटा, ठीक, तभी दिखेगा। यस सर। यहां देखो बेटा, अब क्या होगा, एट एनोड, तो एनोड पर दो कंपटीटर आपके हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर याद, टॉपिक याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहां यहां दो कंपटीटर हैं, और इसमें देखोगे कि जो पोटेंशियल होता है कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन उस मटेरियल का होता है जिसका पोटेंशियल क्या हो, बोलो कोई भी। अगर दो कंपटीटर हैं Cl माइनस और OH माइनस, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कैसे निर्धारित करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में दिया है, बोलो कोई भी। पोटेंशियल ज्यादा हो सकता, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ज्यादा पोटेंशियल किसका होता है, Cl का होता है 1.36 वोल्ट, और OH का 1.23 वोल्ट होता है। समझे, यानी कि यहां पर जो है क्या होगा कि, लेकिन ज्यादा में एक चीज ध्यान देना, ज्यादा और कम कहते वक्त, कि यहां पर यह ध्यान देना है कि अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन के रूप में बात करें, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसलिए पहले कैथोड बता दे, तब नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। कैथोड पर किसका होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में आपके दो हैं, एक Na प्लस और एक H प्लस है, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन में दोनों चीजें हो सकती हैं, कैसे, थोड़ा और डिटेल जान लो। 2Na प्लस प्लस 2E, ये 2Na बन जाए एक कंडीशन, दूसरा 2H प्लस है प्लस 2E, ये H2 बन जाए, दो कंडीशन है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसके लिए जान लो। हाइड्रोजन का पोटेंशियल आप जानते हो 0.00 वोल्ट होता है, और सोडियम का निगेटिव में होता है, ठीक, कम से कम अगर डेटा ना याद हो तो इतना जाओ, -2.76 वोल्ट होता है सोडियम का, यानी सोडियम का निगेटिव पोटेंशियल होगा, और हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट, ये सबको याद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड पर उसका रिडक्शन होता है जिसका पोटेंशियल, अगर हम पॉजिटिव निगेटिव वोल्ट हटा दें और केवल अधिक और कम की बात करें, तो जिसका पोटेंशियल अधिक होता है। क्लियर, क्यों, सोडियम का -2.76 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का क्या है, प्लस माइनस 0.00 वोल्ट, तो किसका अधिक हुआ, सोडियम, अरे हाइड्रोजन का अधिक हुआ, साइन छोड़ के, इसीलिए मैंने कहा कि आपको समझा दूं। हाइड्रोजन का 0 है, ये माइनस है, इसका मतलब ज्यादा किसका हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का। क्लियर, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि रिएक्शन कौन सी होगी, हाइड्रोजन की होगी, यानी रिडक्शन उस मेटल का या उस एलिमेंट का होता है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होता है, और इसमें अब साइन का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक, समझ में आया। तो चूंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल अधिक है, ये होगा, लेकिन यही अगर सोडियम के बजाय कापर होता, तो कापर का +0.34 होता है, तो कापर का रिडक्शन होता, हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होता। ये भी लास्ट में क्वेश्चन अगर किए होगे बाय मिस्टेक
तो वहां पर आया है कॉपर सल्फेट वगैरह का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, कॉपर क्लोराइड का, तो वहां पर हाइड्रोजन का नहीं होता है, कॉपर का होगा रिडक्शन, या सिल्वर का कराओगे सिल्वर का होगा। ठीक, यहां हाइड्रोजन की रिएक्शन प्रेफर करेगी बेटा। और अब देखो एट एनोड, एनोड पर भी दो कंपटीटर हैं, एक Cl माइनस चेंज हो जाए Cl2 में +2 ही ऑक्सीडेशन, और दूसरा 2OH माइनस है, तो ये O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर भी जो है क्या हो जाए, तो यहां पर भी जो है अगर आपको देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा कि ये जो है ऑक्सीडेशन इसका भी हो रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब केवल पोटेंशियल से है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा कि ये जो है क्लोरीन बन सकती है या ऑक्सीजन का निकल सकती है। अब आप देखो कि जो है इसमें बैलेंस करना चाहो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इसमें से भी निकलेगा। फिलहाल इसमें देखो कि ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर एक में आपने देखा अधिक वाले का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, बोलो, जिसका पोटेंशियल अधिक हो ज्यादा हो। कम होगा। एक अधिक हो गया, ज्यादा दूसरा कम होगा, उल्टा पढ़ो। ठीक, तो क्या होगा, क्लोरीन का क्या होता है, देखो बस देखो देखो यहां पर क्या हो गया कि जिस एक में जिसका ज्यादा था उसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा जिसका पोटेंशियल कम होता है, कम होगा। और कम होगा। इसका 1.36 वोल्ट होता है और इसका 1.23 वोल्ट होता है। ठीक, एनसीईआरटी में ही दिया है, बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल जानकारी के लिए आपके मैं बता रहा हूं। देखो सही ढंग से रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, OH की, ठीक, लेकिन रिएक्शन क्लोरीन वाली ही होती है। इसके लिए एक नया टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वो क्या कहते हैं, ओवर पोटेंशियल। किसी को याद है, बोलो। यहां पर जो है वाटर वाले की कम है वैल्यू, क्लोरीन की अधिक है, फिर भी क्लोरीन की ही रिएक्शन प्रेफर की जाती है। रीजन क्या होता है कि जो वाटर में बेटा OH से O2 बनता है उसके बनने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल। द एक्स्ट्रा एनर्जी आर पोटेंशियल नीडेड फॉर परफॉर्मिंग ए रिएक्शन इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। ये टॉपिक पढ़े होगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में ही दिया है। ठीक, तो चूंकि वाटर वाली रिएक्शन में OH की रिएक्शन में ओवर पोटेंशियल होता है, वो रिएक्शन स्लो होगी या बहुत ही स्लो होगी, और इसीलिए Cl माइनस की रिएक्शन प्रेफर होती है, और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन Cl2 में होता है। यानी एनोड पर क्लोरीन आपको ऑब्टेन्ड होगी। हमें सिर्फ इतना बताने से मतलब है कि जब एक्वस सोडियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पर क्लोरीन ऑब्टेन्ड होती है। दिस इज आल्सो द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लियर, कोई दिक्कत? यस सर। नाउ प्रॉपर्टीज, ये प्रिपरेशन था बेटा, ये पूरा डिटेल उसमें भी दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो तो वहां पर इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्लोरीन इज ए पंजेंट स्मेलिंग ग्रीनिश येलो गैस विच काजेज सफोकेशन। सफोकेटिंग गैस होता है, क्लोरीन गैस अगर ज्यादा निकल जाए तो सफोकेशन क्रिएट होता है, एंड इट इज 2 to 5 टाइम्स हीवियर देन एयर, यानी एयर से भारी होती है। एयर में वैसे जान लो ऑक्सीजन जो होती है बेटा इसका मास 16 to the 32 हो गया, जबकि क्लोरीन Cl2 होगी तो उसका मास कितना हो जाएगा, 71। 34 Cl2 होगा तो 71 होगा, जबकि ऑक्सीजन का मास 32 यस सर। होगा, O2। इस कारण से हीवियर देन एयर होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और प्लस
its boiling point is 239 Kelvin temperature. ओके एक ग्रीनिश येलो गैस होगी, सफोकेटिंग होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, एंड इट इज हीवियर देन एयर होती है बिकॉज ऑफ इट्स मास इज ग्रेटर देन एयर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड boiling point is 239 Kelvin. Now chemical properties. Chemical properties. Chlorine is reactive in nature and it reacts with approx all of the metal and non-metal and forms corresponding chloride like H2 plus Cl2, then 2HCl. Other reaction 2S plus Cl2, then S2Cl2. S2Cl2 is called as sulfur monochloride. Okay. Other 2Na plus Cl2, then 2NaCl, Mg plus Cl2, then MgCl2, C plus 2Cl2, that is CCl4. So chlorine is reactive in nature, first है इसका, and it reacts with approx all of the metal and non-metal and forms corresponding chlorides. Okay, like hydrogen chloride, sulfur chloride, sodium chloride, magnesium chloride, carbon chloride, etc. Second, it has very high affinity towards hydrogen. Affinity means होता है affection. Okay, यानी हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन बहुत फास्टली करता है, हाइड्रोजन के प्रति इसका अफेक्शन अधिक होता है. इट हैज वेरी हाई अफेक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सो it reacts with hydrogen containing compounds and gives hydrogen halide, that is hydrogen chloride, like H2S plus Cl2. This will give you 2HCl plus S. एक रिएक्शन आप लिखे हो H2 plus Cl2, then HCl हो जाएगा. इसी तरह से आप अगर CH4 लिख दो तो then 2Cl2 कर दो बेटा, ये हो जाएगा CCl4 plus 2H2 हो जाएगा, या CH4 कर दो प्लस Cl2 कर दो, दिस विल गिव यू CH3Cl प्लस HCl. मतलब हाइड्रोजन के प्रति बेटा इसकी काफी एफिनिटी होती है और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हेलाइड, दैट इज HCl का फॉर्म करता है ना. ठीक, कोई दिक्कत यहां पर? हालांकि इन सबको हटा भी सकते हो. ठीक, हाइड्रोजन को तुरंत लेके HCl बनाता है. मेन प्रोडक्ट आपको HCl से मतलब है, ये रिएक्शन मत लिखना. ठीक, ये यहां पर ये रिएक्शन उसमें नहीं आएगा, हमको HCl से मतलब है, यहां पर दिखा दोगे. ठीक, तो क्या करता है बेटा, HCl बनाता है. इसमें आप अगर लिखना चाहते हैं CH4 वाले में तो इस तरह कर लोगे 2Cl2 और इसको कार्बन प्लस 4HCl लिख दो, आपका सही हो जाएगा. ओके, जिस प्रकार हमको दिखाना हो उस रूप में दिखाना चाहिए. तो हाइड्रोजन के प्रति बेटा इसकी काफी एफिनिटी होती है या हाई एफिनिटी होती है, इसीलिए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जब रिएक्शन करता है तो देन ये क्या कर लेगा, HCl बना लेता है. और इस तरह से आप दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हाइड्रोजन को लेकर के HCl में चेंज कर देता है. नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद NaOH. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिएक्शन विद NaOH, and with NaOH it reacts in different manner. How? First, when chlorine reacts with cold and dilute NaOH. ध्यान दो बेटा, ये कंडीशन पूछता है, कोल्ड प्लस डाइल्यूट, दो चीजें. एंड जब कोल्ड एंड डाइल्यूट से रिएक्शन करेगा तो दिस विल गिव यू सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर. ओके, तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH and cold NaOH, dilute and cold NaOH, this will give you sodium chloride, sodium hypochloride, NaOCl plus H2O. Okay, but
with concentrate NaOH, देखो बेटा 3Cl2 प्लस 6NaOH दिख रहा है बेटा नीचे, ये हो जाएगा हॉट एंड Yes, sir. कंसंट्रेट। ध्यान दो, कोल्ड एंड डाइल्यूट से हाइपोक्लोराइड बनाएगा, जबकि हॉट एंड कंसंट्रेट से क्या बनाएगा बेटा, NaCl तो यहां भी बनेगा 5NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट, ओके, प्लस 3H2O। यहां देखो अंतर बेटा, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा। हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि सोडियम क्लोरेट में हॉट एंड कंसंट्रेट से जब बनेगा तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाता है। ओके, यानी हाइपोक्लोराइड डाइल्यूट के साथ बनाएगा और क्लोरेट कंपाउंड जो है वो हॉट एंड कंसंट्रेट के रूप साथ बनाता है। क्लियर? ये अलग अलग कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक, दूसरा देखो बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद अमोनिया, इससे भी बेटा डिफरेंट मैनर में काम रिएक्शन करेगा, जैसे कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया बट व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, यहां पर क्या होगा, क्लोरीन एक्सेस में होगा, तो देन दिस विल गिव यू नाइट्रोजन क्लोराइड एंड HCl। नाइट्रोजन क्लोराइड NCl3 इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। ध्यान दो बेटा, HCl और NCl3 बनेगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, यहां देखो NH3 प्लस 3Cl2, यहां पर बेटा Cl एक्सेस में होगा, तो दिस विल गिव यू NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज explosive in nature and plus HCl, but when ammonia is in excess, अब ध्यान दो बेटा, अमोनिया अब एक्सेस में हो गया और ये क्लोरीन लेस क्वांटिटी में हो गया। क्लोरीन अगर एक्सेस में होगा तो NCl3 एक्सप्लोजिव बनेगा, अगर अमोनिया एक्सेस में हो गया तो रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। ओके, ध्यान दो, ये चेंज हो गया। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 एक्सप्लोजिव और HCl बनता है, जबकि अमोनिया एक्सेस में हो जाए तो नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों की कंडीशन अगर चेंज करोगे, क्वांटिटी चेंज करोगे तो देन प्रोडक्ट भी आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद लाइम वाटर, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद ब्लीच लाइम वाटर, दैट इज CaOH ट्वाइस, जब बेटा लाइम वाटर से क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो दिस विल गिव्स यू CaOCl ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस इधर लिख दे रहा हूं CaCl2 प्लस 2H2O, और इसी को यहां पर क्या कहते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बट एक्चुअल, एक मिनट, यहां पर बेटा CaCl2 और प्लस 2H2O फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट में दिख रहा है अब तो। और ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन होता है बेटा CaOCl ट्वाइस, CaCl2 and CaOH ट्वाइस 2H2O, ये एक्चुअल कंपोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का। यानी इसका मतलब आप क्या कह सकते हो बेटा, कि ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट ए कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर इज ए मिक्सचर। ब्लीचिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों का मिक्सचर जो होता है या हाइड्रेटेड मिक्सचर ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। क्लियर? तो व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन या व्हेन क्लोरीन पास थ्रू द लाइम वाटर, it gives bleaching powder. Okay, the actual composition of bleaching powder is CaOCl2, CaCl2, CaOH twice, 2H2O. Here it proves that bleaching powder is not a compound
bleaching powder is a mixture of calcium oxychloride, calcium chloride and calcium hydroxide, and these are hydrated because of these contains 2 water molecule in it. Clear? समझ में आया बेटा? तो इस तरह से क्या होगा बेटा कि ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करेगा जब ये रिएक्शन करेगा किससे? लाइम वाटर से। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया है, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड इट गिव्स that CO plus Cl2, it gives COCl2. COCl2 is carbonyl chloride and commonly it is called as phosgene gas. Phosgene gas is highly poisonous in nature. Okay, ये उसमें दिया है कि नेम द 2 gases which are formed by chlorine, और वो भी poisonous gases। तो मैं उसमें नाम दिया है, मैं आपको उसका फॉर्मेशन दिखा दे रहा हूं। और इसी कारण से जो है इसको बताया जाता है कि क्लोरीन जो है वो फाजिन गैस या पॉइजनस गैस बनाने में यूज किया जाता है। यही इसका है कि क्लोरीन को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फाजिन गैस एंड इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। और दूसरी पॉइजनस गैस बेटा जान लो कि व्हेन sulfur reacts with chlorine it forms S2Cl2 sulfur monochloride, and when this sulfur monochloride reacts with ethane, 2 water molecule of ethane plus S2Cl2, ध्यान दो बेटा, एथीन से 2 वाटर मॉलिक्यूल एथीन का लोगे, सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन करेगा, तब ये कौन सी पॉइजनस गैस और कैसे बनेगी यहां देखो। This will give you Cl, CH2, CH2, S, CH2, CH2 and Cl plus S. This is called as mustard gas. This is also poisonous in nature. Okay. So once again, when sulfur react with chlorine, this is only for jankari, but you should know only the name ki this is the mustard gas and it is poisonous gas and prepared by chlorine. How it is prepared? See here, ki when sulfur react with chlorine it gives sulfur monochloride, and when this sulfur monochloride react with ethene, 2 molecules of ethene, it gives you the chlorine, then Cl2, Cl2, S, CH2, CH2, then Cl and plus S, and this compound is called as mustard gas and it is poisonous in nature. Clear? एक और जान लो बेटा, फिर ये टीयर गैस बनाने के भी काम आती है क्लोरीन। टीयर गैस जो पढ़ते हो कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं पर दंगा वगैरह होता है या भीड़ होती है तो उसमें भी जान लो क्या होता है। इसमें क्या करते हैं बेटा, मेथेन, मेथेन का जब नाइट्रेशन कराओगे यानी HNO3 से जब ये रिएक्शन कर लेगा, और इसमें से क्या होगा कि ये जो है CH3NO2 प्लस H2O, ये नाइट्रोमेथेन है, और ये नाइट्रोमेथेन बेटा CH3NO2 नाइट्रोमेथेन बेटा जब 3Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो इसमें से क्या बन जाएगा, CCl3NO2 प्लस 3HCl, जो बेटा ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन होता है, दिस इज योर टीयर गैस। ओके, ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन, दिस इज कॉल्ड एज टीयर गैस। तो टीयर गैस भी क्लोरीन से बनाया जाता है। दिस इज टीयर गैस यानी आंसू गैस जो CCl3NO2 होता है, और ये ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन कहलाता है। एक और जानकारी के लिए आपको बता दें, लेकिन वो क्लोरीन से नहीं बनता है, इतना ध्यान दो, वो भी टीयर गैस होता